Good morning, student. This is your first period, and the chapter name is Introduction of Scratch. So, today I will teach you the introduction of Scratch. First of all, everybody open the page number in your book. Okay, on page number 71, you can see the chapter number 7 Introduction of Scratch. So, first of all, the first question is what is Scratch? So Scratch is a programming language which is used to create the many kinds of programs like animations, games and lots of things. Okay, जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं. ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है दैट सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड बाय द सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन. दीज आर ऑल नोन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसी तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्क्रैच. स्क्रैच का जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट द बेसिक प्रोग्राम. जैसे आप कैलकुलेशन इससे परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ एनिमेशंस बना सकते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स हैं, गेम्स हैं, वो आप इससे डिज़ाइन कर सकते हैं. सो फर्स्ट आई एम शेयरिंग ए वीडियो विद यू दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट स्क्रैच by this video. Okay, so I am sharing, hope you will enjoy this video. So look at this video. Okay, after that we will discuss about the scratch. Hello students, let me introduce you to Scratch, a very interesting software for creating games and animations. It is also useful for learning the basics of computer. Students, how do you express your feelings to your family and friends? Through language, isn't it? A language is a medium to talk or write. You may speak different languages like Hindi, English, or any other regional language. But to interact with any person, you need a common language, which both of you can speak and understand. In the same way, if you want to give instructions to a computer, you need to learn the language that a computer understands. A computer does not understand a language that we speak. It understands only programming languages. A programming language is used to write a set of instructions using which you can make a computer do any activity that you want. First, let us talk about Scratch. Scratch is one of the easiest programming languages. You can use it to create games, animated stories, and projects with great ease. Okay, students, let's learn it with an example. Any task that we perform includes many steps. It should be completed step by step in a particular sequence. Suppose Kunal's teacher asks him to bring notebooks of his class from the computer lab. As he is new in the school, she guides him how to reach the computer lab. She gives him the following instructions. Move to the left from the class and go straight. After crossing 5 classes, take a left turn. Then go forward, and after crossing 6 classes, take a right turn. After crossing 3 classes, you will reach the computer lab. Likewise, a computer also follows stepwise instructions to complete any task. A set of stepwise instructions is known as a program. Students, let's know the fact. Scratch can easily run on different operating systems including Windows, Mac OS and Linux. Let's learn quickly, starting Scratch. To start Scratch, follow the steps given below. Click on the Start button. Click on Scratch Desktop. The Scratch window opens up. Alright, let's know an interesting fact. Scratch is developed by the Lifelong Kindergarten Group at the MIT, Massachusetts Institute of Technology, Media Lab, led by Mitchell Resnick in 2003. Let's learn about main components of Scratch. Following are the main components of the Scratch window. Sprite. Sprite is a small graphic character that performs actions in a Scratch project. Scratch provides a number of inbuilt sprites. Cat is the default sprite in Scratch. Stage. It is the main working area where the sprite moves and performs actions as per the given instructions.
On it, you can watch stories, play games, and run projects that you have created. Blocks palette. The blocks palette contains a set of blocks that are used to program sprites and give actions to it. Each block is used to perform a specific task in a project. By connecting blocks with each other, just like a jigsaw puzzle, you can create scripts in Scratch. Let's know an interesting fact. The official website of Scratch is www.scratch.mit.edu. Script. Script is a collection of stepwise instructions that are given to a sprite to do a specific task. A script consists of at least 2 blocks. Scripts area. The scripts area is the place where you create a script for a sprite to do a particular task. The script is created by dragging the blocks from the blocks palette and dropping them stepwise one below the other. A script is also called a program. The following picture shows how to drag and drop the blocks in the scripts area. Students, let us know the fact. Scratch is used in more than 150 countries and available in 40 different languages. Let's quickly learn about moving a sprite. All the instructions, blocks related to the movement of a sprite are given under the motion category. Let us create a Scratch project to move the sprite in a circular motion. Open the Scratch window. By default, the motion category is displayed on the left side of the Scratch window. Click on the block and drag it to the scripts area. Change the number of steps from 10 to 20 by typing in the number box. Click on the block. You will notice that the sprite moves a specified number of steps. Click on the Turn 15 degrees block. Now drag and drop it on the script area. Place it below the block. Keep clicking on any block in the script area. Observe that the sprite is moving 20 steps forward and turning 15 degrees in a circular motion on the stage. Let us understand the use of motion blocks, which we have used in the project. Move 20 steps. This block moves the sprite 20 steps in forward direction. To move the sprite in backward direction, type the number with the preceding minus sign. For example, -20. Turn 15 degrees. This block is used to turn the sprite in clockwise direction. To turn the sprite in anti-clockwise direction, use Turn 15 degrees block. Let's learn the most interesting topic, drawing a colorful circle. To draw shapes, you need the pen blocks, which are not available in the blocks panel by default. To add pen blocks, click on the Add Extension button and select the pen thumbnail. The blocks of the pen blocks palette allow the sprite to draw lines on the stage, change the color and the thickness of lines. Let us add some more blocks to the previous project. Observe the movement of the sprite on the stage. Click on the pen category, color code green. Select the pen down block from the pen block palette. Drag the block and place it underneath the block. Now drag the block and place it below the block. Change the value from 1 to 10. Drag the block from the pen blocks palette and drop it at the end. Change the value from 10 to 20. Keep clicking on any of the blocks in the scripts area till the sprite completes its colorful circle. Let us understand the use of pen blocks that you have used in the project. Pen down. This block draws a line as the sprite moves on the stage. Set pen size to 1. This block is used to set the thickness of the pen to a specific number. You can change the thickness of the pen by typing in the number box. Change pen color by 10.
This block is used to change the color of the pen. Students, now let us know how to make a duplicate copy of a sprite. To create a duplicate copy of the sprite, the stamp block is used. Drag the blocks from the motion and pen blocks palette and snap with each other as shown in figure. Change the values of the blocks as given. Click on any of the blocks to run the script. You will see the duplicate copy of the sprite. When sprite reaches the edge of the stage, it will bounce back and change its direction. If on edge, bounce. The if on edge, bounce block is in the motion block menu. It is used to turn the sprite in the opposite direction as it reaches to the edge of the stage. Let's quickly learn saving a Scratch project. Once you finish a project, always save it before closing the Scratch window. To save the project, follow the given steps. Click on the File tab. Select the Save to your computer option from the drop-down list. The Save As dialog box appears. Choose the desired location where you want to save your Scratch project. Assign a name to your project in the File Name text box. Click on the Save button. Your Scratch project will be saved. You can open it whenever required. Students, now let us know how to open a saved project. To open a saved project, follow the given steps. Click on the File tab. Choose the Load from your computer option from the sub-menu. The Open dialog box appears. Select the project that you want to open. Click on the Open button as shown in figure. The selected project opens in the Scratch window. Okay students, let us take a recap of this chapter. Scratch is one of the easiest computer languages. You can use Scratch to create games, animated stories and projects with great ease. Sprite is a small graphic character that performs actions in a Scratch project. Script is a collection of stepwise instructions that are given to Sprite to do a specific task. Script area is the place where you can create a script to do a particular task. All the blocks related to the movement of the sprite are given in the motion blocks category. The blocks of the pen block palette allows the sprite to draw lines on the stage, change the color and the thickness of lines. Okay student, hope you enjoyed this video. The basic purpose to share this video that you will get the practical knowledge about the Scratch. Basically इसका यूज़ कैसे होता है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली स्क्रैच का जो यूज़ है वो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्पस से करते हैं. अब ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, एज लाइक वी कैन से दैट इफ़ वी आर टॉकिंग विद अवर फ्रेंड, तो हमें किसी न किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है. वो लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, अदरवाइज एनी अदर रीजनल लैंग्वेज लाइक बंगाली, पंजाबी. मीन्स इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन देन यू नीड ए लैंग्वेज. ऐसे ही कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. इन द सेम वे, इफ़ यू वांट टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, you need to learn the language that the computer understand. A computer does not understand the language that you speak. Means कि जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो वो कंप्यूटर नहीं समझता है. It only understand the programming language. तो कंप्यूटर को हमें कुछ भी समझाने के लिए जिस लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं, वो उसको इंटरप्रेट करता है, कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद में क्या करता है, उसको आउटपुट देता है, जिसको आप आईपीओ साइकिल बोलते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट.
सो बेसिकली दिस इज़ द वर्क ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी जो कमांड आप दे रहे हैं उसको समझेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वर्क करेगा। सो ये जो स्क्रैच है, दिस इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ बेसिकली वर्क एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ जो है आप गेम्स बनाने के काम में यूज़ लेते हैं, एनिमेशंस क्रिएट करने के काम में यूज़ लेते हैं, और जो छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो जो स्क्रैच है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ कमांड्स ऑलरेडी स्टोर होते हैं। उन कमांड्स को आपको क्या करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, जिससे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, डिज़ाइन हो जाएंगे। नाउ ये जो स्क्रैच है इसके कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं, मीन्स के डिस्प्ले पे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको दिखाई देंगे, जैसे लाइक मेन्यू बार, टाइटल बार, फुल स्क्रीन कंट्रोल, ब्लॉक्स पैनल, स्क्रिप्ट एरिया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एज यू सी इन द वीडियो, दैट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज स्प्राइट। अब ये स्प्राइट क्या होता है, डिस्प्ले पर जो हमें कैट दिखाई दे रही है उसको हम स्प्राइट बोलते हैं। बेसिकली ये जो स्प्राइट है यही इस स्क्रैच सॉफ्टवेयर के अंदर सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सो स्प्राइट इज़ द स्मॉल जियोग्राफिक करेक्टर दैट परफॉर्म द एक्शन इन ए स्क्रैच प्रोजेक्ट। मीन्स के कोई भी जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा, स्प्राइट। स्क्रैच प्रोवाइड ए नंबर ऑफ इनबिल्ट स्प्राइट। इसके अंदर एक से ज़्यादा स्प्राइट क्या होते हैं, इंक्लूड रहते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ए कैट इज़ द स्प्राइट। ठीक है, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो कैट इसके अंदर स्प्राइट होता है। अदरवाइज अगर आप कुछ और स्प्राइट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर स्प्राइट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज स्टेज। मीन्स इफ़ यू आर परफॉर्मिंग ए फंक्शन, if you are performing a function or action that you need to be a stage, आपको कोई ना कोई स्टेज चाहिए जहाँ पर आप इस फंक्शंस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सो सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज स्टेज। इट इज़ द मेन वर्किंग एरिया वेयर द स्प्राइट मूव एंड परफॉर्म सम एक्शन। मीन्स के जहाँ पर स्प्राइट जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसको हम स्टेज बोलते हैं। ऑन इट यू कैन वॉच स्टोरीज। इस पर हम स्टोरीज को देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, और जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक प्लेट। अब ब्लॉक प्लेट क्या होता है, द ब्लॉक प्लेट कंटेन ए सेट ऑफ ब्लॉक्स दैट आर यूज टू प्रोग्राम स्प्राइट एंड गिव द एक्शन टू इट। ईच ब्लॉक इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन ए प्रोजेक्ट बाय कनेक्टिंग blocks with each other just like a zigzag puzzle you can create the script। means जो script है that is basically created by the specific commands। मतलब जब ये जो commands इसमें दी हुई होती हैं, जैसे like motion block and other blocks होते हैं इसमें, इन सभी को क्या करना है, आपको कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद में आपको क्या करना है, एक इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स आप बना लेंगे तो यही जो ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स है यही क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। अब ये जो ग्रुप ऑफ फंक्शंस हैं या ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्क्रिप्ट बोल देते हैं। ए स्क्रिप्ट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू ए स्प्राइट टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है ये बेसिकली क्या करेगा, जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो आपके जो कमांड्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, आप उनको स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो उन्हीं स्टेप्स को रीड करके क्या करेगा, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने लगेगा। इसीलिए इसको एक स्क्रिप्ट बोल देते हैं। ए स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 ब्लॉक्स। मीन्स के अगर आपको कोई स्क्रिप्ट बनानी है तो इस स्क्रिप्ट में कम से कम आपको 2 ब्लॉक रखने हैं, और मैक्सिमम आप कितने ब्लॉक्स भी इसमें रख सकते हैं। और जब ये ब्लॉक्स कंबाइन होंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, इसको अंडरस्टैंड करेगा। आफ्टर अंडरस्टैंड इट विल परफॉर्म द फंक्शन। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट एरिया। अब देखिए, जब हमें स्क्रिप्ट बनानी है तो उसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बनाएंगे, और जिस एरिया में हम इसको बनाते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया। द स्क्रिप्ट एरिया इज द प्लेस वेयर यू कैन क्रिएट द स्क्रिप्ट फॉर ए स्प्राइट टू डू ए पर्टिकुलर टास्क। मीन्स के अगर आपको कोई फंक्शन स्प्राइट के द्वारा परफॉर्म कराना है
तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। और ये जो स्क्रिप्ट जिस एरिया में आप बनाते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया। ओके, सो स्क्रिप्ट इज क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग द ब्लॉक्स फ्रॉम द ब्लॉक्स प्लेट एंड ड्रॉपिंग दैम इनटू द स्टेप वाइज ब्लो टू द अदर। मीन्स के एक के नीचे एक हम जब रखेंगे स्क्रिप्ट को, सॉरी, जब हम इनको जो हमारे ब्लॉक्स हैं इनको एक के नीचे एक रखेंगे तो ये क्या होगा, पूरी स्टेप बाय स्टेप की क्या होगी, एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। और इसी स्क्रिप्ट को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट हैं इनको हम प्रोग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ए प्रोग्राम इज नोन एज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसका जो सेट होता है उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं। एज लाइक यू कैन सी दैट इन द बुक। ओके, सो दीज आर द ब्लॉक्स। इनको हमने क्या करना है, ये ब्लॉक्स हम क्या कर रहे हैं, एक के नीचे एक पेस्ट करते जा रहे हैं। और जब हम इन ब्लॉक्स को पेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, पूरा एक स्क्रिप्ट बन जा रहा है। और जब हम इस स्क्रिप्ट को क्या करेंगे, रन करेंगे, तो ये क्या होगा, स्प्राइट इसको क्या करने लगेगा, रन करने लगेगा। सो इस तरीके से जो है हम अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, स्क्रैच सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो ब्लॉक्स हैं वो स्क्रिप्ट के स्क्रैच के अंदर यूज़ किए जाते हैं। एज लाइक जो इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी में सबसे पहले आता है मोशन ब्लॉक। अब ये मोशन ब्लॉक किस काम आता है, ये मोशन ब्लॉक जो है ये पर्टिकुलर जो हमारा स्प्राइट है उसके मूवमेंट के काम आता है। यानी उसको इधर से उधर मूव कराने के लिए, रोटेट कराने के लिए, या कोई भी फंक्शन जो है जो मोशन से रिलेटेड है उसको परफॉर्म करने के लिए जितने भी ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं, मोशन ब्लॉक के अंदर आते हैं। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट ब्लॉक है मूव ब्लैंक स्टेप। ठीक है, तो जैसे आपने लिख दिया मूव 10 स्टेप्स, तो मूव 10 स्टेप का मतलब ये है कि जो आपका स्प्राइट है दैट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन 10 स्टेप। और अगर आप जो ये नंबर है इसको माइनस में लिख देते हैं एज लाइक मूव -10 स्टेप, तो -10 का मतलब ये है दैट योर स्प्राइट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन 10 स्टेप। ओके, तो जो आपका स्प्राइट है अब इसको उल्टा करने से क्या होगा, वो उल्टी डायरेक्शन में जाने लगेगा। उसके बाद अगर आपको अपने स्प्राइट को टर्न कराना है तो उसके लिए जो ब्लॉक यूज़ किया जाता है वो है टर्न ब्लैंक डिग्री। ब्लैंक डिग्री, जो ब्लैंक ऑप्शन है वहाँ पे आप कितने भी डिग्री भर सकते हैं। एज लाइक टर्न 15 डिग्री, तो जो स्प्राइट है आपका वो क्या होगा, 15 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट मोशन ब्लॉक। अब जैसे एक प्रोग्राम था, अभी वीडियो में हमने देखा कि जो स्प्राइट है वो क्या कर रहा था, एक कलरफुल सर्किल को क्या कर रहा था, ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, तो वो जो पोर्शन था, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। पहला कमांड था मूव 10 स्टेप। ठीक है, उसने क्या करा, 10 स्टेप मूव किया। 10 स्टेप मूव करने के बाद में द अनोदर कमांड इज दैट टर्न 15 डिग्री। तो उसमें हमने क्या किया, जो स्प्राइट था उसको 15 डिग्री मूव कराया। फिर पेन को डाउन किया एंड सेट द पेन साइज टू 1। ठीक है, पेन साइज टू 1 का मतलब यह है जो स्क्रिप्ट जो पेन यूज़ कर रहा है तो हम उसके साइज़ को, उसके बिट को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमने क्या करा, उसको 1 सेट कर दिया। तो 1 सेट करने से क्या होगा, जो उसकी जो बिट है वो 1 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलरली आफ्टर एवरी 10 सेकेंड हमें क्या करना है, जो स्प्राइट मूवमेंट कर रहा है उसके कलर को चेंज करना है। तो जिसकी वजह से जो सर्किल था वो क्या था, आफ्टर 10 स्टेप क्या हो रहा था, वो अपने कलर को चेंज कर रहा था, जिससे जो सर्किल डिज़ाइन हुआ स्प्राइट के द्वारा तो वो एक कलरफुल सर्किल क्या हुआ, डिज़ाइन हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉक्स को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते थे। आफ्टर दैट कुछ जो अलग जो ब्लॉक्स हैं जो हम इस स्क्रैच के अंदर यूज़ करते हैं, जो पेन ब्लॉक के अंदर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं एज लाइक पेन डाउन। ठीक है, अब जैसे अगर आप बात करें तो 2 कमांड होते हैं, पेन अप एंड पेन डाउन। तो अगर ये आपकी बुक है और बुक पे क्या कर रहे हैं, अगर आप पेन अप कर ले रहे हैं, अब पेन अप करने के बाद में आप इस पेन को किधर भी मूव करें, मूव करने के बाद में क्या होगा, अभी आपका पेन क्या है, पेपर से ऊपर है, तो आप इसको किधर भी मूव करेंगे तो कोई लाइन पेपर पर ड्रॉ नहीं होगी। मीन्स के अगर आपको क्या करना है, विदाउट ड्रॉइंग एनी लाइन यू वांट टू
मूव योर स्प्राइट। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो कमांड यूज़ करना पड़ेगा वो होगा पैन अप। पैन अप का मतलब है कि आपका पैन जो है वो क्या होगा, जो इस ड्राइंग एरिया है उससे ऊपर हो जाएगा, और आप जब उसको मूव करेंगे तो मूव करने पे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होगी। आफ्टर दैट इफ यू विल यूज़ द पैन डाउन कमांड, तो पैन डाउन कमांड पे क्या होगा, अब ये जो पैन है आपका वो क्या है, कॉपी के ऊपर है। अब आप इसको जब भी मूव करेंगे तो ये क्या होगा, एक लाइन को ड्रॉ करेगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ द पैन डाउन एंड पैन अप कमांड इन द पैन ब्लॉक। ठीक है, तो पैन अप का वर्क क्या है, जब आपका पैन अप होगा तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी, और अगर पैन डाउन होगा तो जब वो मूवमेंट करेगा स्प्राइट तो वहां पर लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स थे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ यू विल सेव द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, यू विल हैव टू गो टू द फाइल टैब। आपको फाइल टैब में जाना है जो आपको सबसे टॉप में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे टॉप में जाने के बाद आप जैसे ही फाइल पर क्लिक करेंगे, तो फाइल पर क्लिक करने के बाद में वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव टू योर कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे ही सेव टू योर कंप्यूटर पर आप क्लिक करेंगे, तो सेव टू योर कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद में वो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आपके कंप्यूटर में आपको ले जाएगा। अब उसके बाद में वो आपसे नाम पूछेगा, दैट राइट द नेम ऑफ योर प्रोग्राम। तो वहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम का नाम देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड द लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टोर द प्रोग्राम। ठीक है, एज लाइक यू वांट टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप। आपको क्या करना है, अपना प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप के बटन को चूज़ करेंगे। अब जैसे ही डेस्कटॉप के बटन पर चूज़ करेंगे तो नीचे की साइड में, एज यू कैन सी इन द बुक, ठीक है, ऑन पेज नंबर 76 यू कैन सी दैट यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा है सेव का। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है दैट विल सेव इनटू योर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये फाइल क्या हो गई, आपकी सेव हो गई। तो हम फाइल को सेव क्यों करते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें उस फाइल की जब दोबारा से ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ओपनिंग ए सेव फाइल या सेव प्रोजेक्ट। अगर आपको पुराने किसी प्रोजेक्ट को क्या करना है, वापस से स्क्रैच के अंदर ओपन करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में सबसे ऊपर की साइड में जिस ऑप्शन का यूज़ आप पहले सेव करने के लिए कर रहे थे उसी ऑप्शन का यूज़ क्या करेंगे, ओपन करने के लिए करेंगे। सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन आएगा लोड फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, सो लोड फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर मतलब कि वो आपसे ये कहेगा कि आपको जो फाइल है वो कहाँ से पिकअप करनी है। अब इसमें क्या करना है, आपको फाइल की लोकेशन डिफाइन करनी है जहाँ से आपको फाइल को उठाना है। जैसे हमने क्या करा था पिछली बार, उस फाइल को कहाँ पर सेव किया था, डेस्कटॉप पर। तो अब हम क्या करेंगे, उस फाइल को डेस्कटॉप पर ही जाकर फाइंड करेंगे। तो डेस्कटॉप बटन जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा। कंप्यूटर के अंदर ले जाने के बाद में आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बटन। डेस्कटॉप बटन पर जितनी भी फाइल सेव होंगी उन सब के नाम आपके पास आ जाएंगे। जिस फाइल को आपने अपनी फाइल को जैसे आपने किसी पहले नाम से सेव किया था, मान लो मैंने जो फाइल है वो प्रोजेक्ट 1 के नाम से सेव की थी। अब प्रोजेक्ट 1 जो फाइल थी वो मुझे क्या होगा, फाइंड करना पड़ेगा। और जब वो फाइल मुझे मिल जाती है, ओके, देन आई विल यूज़ द राइट क्लिक ऑन दिस फाइल। और राइट क्लिक करने के बाद में नीचे की साइड में नीचे के पोर्शन पे जहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा था वहीं पर एक ऑप्शन आएगा आपको ओपन का। तो जैसे ही आप उस ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो जो पुराना आपने प्रोजेक्ट सेव किया हुआ था वो क्या होगा, वापस से ओपन हो जाएगा। और जो पुरानी स्क्रिप्ट आपने सेव की हुई थी या जो पुराना जो आपने प्रोग्राम सेव किया हुआ था वो क्या होगा, वापस से स्क्रैच के अंदर आ जाएगा और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आप उसको अगेन रन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। और इसमें मैंने बेसिकली जो भी चीज़ें आपको बताई है, इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि स्क्रैच बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। द बेसिक पर्पस टू यूज़ द स्क्रैच टू मेक सम एनिमेशंस, गेम्स, एंड दिस इज़ बिहेविंग लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जो स्क्रैच है, स्क्रैच इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, थोड़े अपर लेवल पे चली जाती हैं। नेक्स्ट है जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है स्प्राइट। अब स्प्राइट क्या है? स्प्राइट इज़ ए स्मॉल ग्राफिकल कैरेक्टर दैट परफॉर्म द एक्शन इन द स्क्रैच प्रोजेक्ट। मीन्स क्या, आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस सॉफ्टवेयर में आपको स्प्राइट ही परफॉर्म करके देगा। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? द स्क्रिप्ट इज द कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द स्प्राइट टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। मीन्स के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप बना रहे हैं या आप जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करने के बाद में जब आप उनको सेव कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज द स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसमें बहुत सारे तरीके के ब्लॉक्स होते हैं और हर किसी ब्लॉक का क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और हर कोई जो ब्लॉक है वो एक अलग कलर से क्या होता है, ड्राइव होता है। जैसे यू कैन सी दैट इन योर बुक के जो पेन ब्लॉक्स थे वो क्या थे, ग्रीन कलर से डिफाइंड थे, ठीक है। जो मोशन ब्लॉक थे वो ब्लू कलर से डिफाइंड थे। तो हर ब्लॉक्स का क्या होता है, अपना पर्टिकुलर एक कलर होता है और उस कलर से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। सो ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है एंड होप जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सो टुडे योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू फाइंड द कंप्लीट बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर। आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड करने हैं, इसके ट्रू फॉल्स फाइंड करने हैं और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपको वो फाइंड करने हैं और जो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है, जो MCQs हैं, वो आपको फाइंड करने हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट, ओके। और तब तक के लिए अपने घर पर आराम से जो है ठंड को एंजॉय करें और जो क्लासेस हैं और घर पे जो क्लासेस हैं उनको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी आती है सो उन क्वेरीज को आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचर्स से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।